السلام علیکم. سٹی 42 کے نیوز اسٹوڈیو سے شہر کی سب باتوں کے ساتھ میں ہوں ریحان طارق اور میں ہوں عائشہ یوسف. نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر، لیکن اس شارٹ بریک کے بعد. ڈی سی او سید رضوان محبوب نے کل سے شہر بھر میں غیر قانونی تعمیرات کو سربہ مہر کرنے کے لیے بلا تفریق گرینڈ آپریشن کا حکم دے دیا. میٹرو بس اتھارٹی کا ناروا سلوک، ناجائز پابندیوں اور جرمانوں پر ڈرائیورز کی 2 گھنٹے کی ہڑتال. مطالبات منظوری کی یقین دہانی پر عارضی طور پر ہڑتال ختم کر دی. میاں محمد شہباز شریف ایک مرتبہ پھر وزیر اعلیٰ پنجاب بنیں گے. مسلم لیگ نون نے منظوری دے دی. جاتی عمرہ میں شہباز شریف کی گاڑی کے سامنے چادرہ کے رہائشیوں کا احتجاج. عائشہ صغرا کو مخصوص کوٹے میں ٹکٹ دینے کا مطالبہ. تحریک انصاف کے رہنماؤں کی زمان پارک میں عمران خان کی رہائش گاہ پر آمد. ادھر عمران خان نے تحریک انصاف کے 9 منتخب ایم این ایز کا اجلاس 25 مئی کو زمان پارک میں طلب کر لیا. خسرے نے ایک اور ننھی جان نکل لی. چلڈرن اسپتال میں 7 ماہ کا عبدالرحمان جاں بحق. شہر میں اب تک ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 60 ہو گئی. سرکاری ہسپتالوں میں 1 برس 3 ماہ بعد بھی پی سی آر ٹیسٹ کی سہولت بحال نہ ہو سکی. ہیپاٹائٹس کے مریض پرائیویٹ لیبارٹری سے رجوع کرنے پر مجبور، جبکہ جناح ہسپتال کی ایم آر آئی مشین ایک مرتبہ پھر خراب. تھانہ اشرا پولیس اور لیسکو افسران آمنے سامنے. لیسکو نے 3 مرتبہ کھانے کا کنیکشن منقطع کیا. تاہم پولیس نے غیر قانونی طور پر کنیکشن بحال کرتے ہوئے 4تھی مرتبہ کنیکشن کاٹنے کی کوشش ناکام بنا دی. شہر کے اکثر علاقوں میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ سے نظام زندگی مفلوج. ادھر صارفین کے غصے سے بچنے کے لیے لیسکو سمن آباد آفس کو تالے لگا دیے گئے. ہربنس پورہ کے علاقے میں گیس لیکیج کے باعث گھر میں آتش زدگی. 36 سالہ خاتون جل کر جاں بحق. خاوند اور بیٹی شدید زخمی. پنجاب اسمال انڈسٹری کے ملازمین 14ویں روز بھی دفاتر سے محروم. کیمپ میں کام کرنے پر مجبور. حکام کی جلد متبادل جگہ فراہم کرنے کی یقین دہانی. وفاقی حکومت نے ایس پی سٹی ڈویژن لاہور عدیل حسین چاندیو کا پنجاب سے ایف آئی اے تبادلہ کر دیا. مصری شاہ پولیس نے موٹر سائیکلیں چھیننے والا گینگ گرفتار کر لیا. 9 موٹر سائیکل اور اسلحہ برآمد. ایئرپورٹ کے مسافر لاؤنج میں سیاسی تشہیر پر پابندی کے باوجود فلیکسز نصب کر دی گئی. صارف عدالت نے ایڈوانس رقم دینے کے باوجود دروازوں کے شیشے وعدے کے مطابق نہ لگانے پر یوسف گلاس ہاؤس اشرے کے مالک کو 23,000 روپے درخواست گزار کو فوری ادا کرنے کا حکم دے دیا. سینٹر میں جرمنی اور فرانس کی 50 سالہ دوستی کے حوالے سے تقریب. دونوں ممالک کے سفارتی عملے اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نجم سیٹھی کی شرکت. پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائن کے طلباء کے تھیسس پروجیکٹ کی نمائش. فرانس کے سفیر فلپ تھیبو کی بطور مہمان خصوصی شرکت، جبکہ سویڈن کے سفیر کا لاہور آرٹ گیلری کا دورہ. پاکستانی مصوروں کے فن پاروں کی تعریف. یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے انسٹیٹیوٹ آف بزنس اینڈ مینجمنٹ کے فارغ التحصیل طلباء کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا اہتمام. طلباء کے بنائے ہوئے قافیے اور پرفارمنس دیکھ کر حاضرین نے خوب داد دی. ہوائی ہوٹل میں تحریک وحدت اسلامی کے زیر اہتمام جشن مولود کعبہ کانفرنس. علماء کرام کے علاوہ سیاسی اور سماجی شخصیات کی بھی شرکت. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین چودھری ذکا اشرف نے کہا ہے کہ اسد رؤف آئی سی سی کے امپائر ہیں. ان کے خلاف کی گئی کارروائی میں پی سی بی غیر جانبدار ہے. ورلڈ ہاکی لیگ کے لیے قومی ہاکی ٹیم کے 26 کھلاڑیوں کا اعلان. تربیتی کیمپ 29 مئی سے ایبٹ آباد میں شروع ہوگا. لاہور میں مئی کے دوران گرمی کا 59 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. چیف میٹرولوجسٹ محمد ریاض اور ڈاکٹر جاوید اکرم نے دفاتر کے اوقات صبح 6 سے 12 بجے تک کرنے کی سفارش کر دی. اور دوپہر کے وقت درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا. لوڈ شیڈنگ سے جنریٹر اور یو پی ایس نے کام کرنا چھوڑ دیا. ہاتھ کے پنکھوں کا دور واپس آ گیا. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب بلیٹن میں خبریں تفصیل کے ساتھ.
DCO सैयद रिजवान महबूब ने कल से शहर भर में गैर कानूनी तामीरात को सरबमोहर करने के लिए बिला तफरीक ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म दे दिया है। सैयद रिजवान महबूब ने शहर के तमाम टाउन एडमिनिस्ट्रेटर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, TMOs को जुमे के रोज से शहर भर में गैर कानूनी तामीरात को सरबमोहर करने के लिए बिला तफरीक ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म दिया है। उन्होंने तमाम अफसरान को हिदायत की है कि शहर भर में ज़ेर तामीर इमारतें जिनका नक्शा मंजूर नहीं, उन्हें फौरी तौर पर सरबमोहर किया जाए, जिसकी बराह रास्त निगरानी तमाम AC साहिबान खुद करेंगे और DC ऑफिस रिपोर्ट करेंगे। DCO ने असिस्टेंट कमिश्नर्स को शहर के इतवार बाजारों में इंतजामात बेहतर बनाने की हिदायत की। DCO सैयद रिजवान महबूब ने कहा कि तमाम अफसरान अपने अपने टाउन्स में रमजान बाजारों की जगहों का भी क़ाबिल वक्त तयन करें। मेट्रो बस अथॉरिटी के नारवा सलूक, नाजायज पाबंदी और जुर्मानों पर ड्राइवर्स ने 2 घंटे की जुज़वी हड़ताल की। मुतालिबात की मंजूरी की यकीन दहानी पर आर्जी तौर पर हड़ताल खत्म कर दी गई। मेट्रो बस अथॉरिटी के अफसरान की जानिब से बेजा पाबंदी और नारवा सलूक पर मेट्रो बस के ड्राइवर्स ने हड़ताल करते हुए तमाम बसें गजुमता स्टेशन और बस डिपो पर खड़ी कर दी। ड्राइवर्स की जानिब से मेट्रो बस न चलाने के बायस मुसाफिरों को 2 घंटे तक शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। ड्राइवर्स का कहना है कि मेट्रो बस अथॉरिटी और तुर्क कंपनी की जानिब से बेजा तंग किया जा रहा है। मामूली बातों पर ड्राइवर्स को चालान का सामना करना पड़ता है, जिसके बायस उनकी तनख्वाहों से जुर्मानों की कटौती कर ली जाती है। GM ऑपरेशंस मेट्रो बस सैयद अजीज शाह और आला हुकाम ने मुतालिबात पूरा करने की यकीन दहानी करवाई, जिस पर ड्राइवर्स ने आर्जी तौर पर हड़ताल को मौखर कर दिया। ड्राइवर्स की जानिब से आइंदा का लाया अमल आला सतह के मुज़ाकरात के बाद वज़ा किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को वजीर आला पंजाब नामजद कर दिया, ताहम हतमी फैसला पंजाब असम्बली का ऐवान करेगा। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जमात की मुशावरती कमेटी और सीनियर रहनुमाओं ने सिफारिश की थी कि साबिक वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए उन्हें दोबारा वजीर आला पंजाब मुंतखब किया जाए, जिस पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को वजीर आला पंजाब नामजद किया है। ताहम शहबाज शरीफ का बतौर कायदे ऐवान मुंतखब होने का फैसला मेंबरान पंजाब सूबाई असम्बली इजलास के दौरान अपने वोट से करेंगे। ज़राए के मुताबिक मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कौमी असम्बली की सीट NA 129 और सूबाई असम्बली की सीटों PP 159 और PP 161 से दस्तबरदार हो रहे हैं, जबकि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ राजनपुर से अपनी सीट पास रखेंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से पंजाब असम्बली में खवातीन की मखसूस कोटे में नाम शामिल न करने पर मुस्लिम लीगी रहनुमा सुगरा आयशा ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की रिहाइश गाह के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। शादरा की रिहायशी मुस्लिम लीग नून की रहनुमा सुगरा आयशा ने नून लीग के मरकजी सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की रिहाइश गाह के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। ताहम मुजाहिरीन ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की गाड़ी के सामने भी एहतजाज किया, जिस पर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सुगरा आयशा और दीगर खवातीन को मुज़ाकरात के लिए बुलवाया। ताहम सुगरा आयशा के मुताबिक कई घंटों के इंतजार के बाद भी मुस्लिम लीगी कायदीन ने उनसे मुलाकात नहीं की। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि सुगरा आयशा की जमात में खिदमात को देखते हुए उन्हें पंजाब असम्बली में मखसूस कोटे से रुकन असम्बली मुंतखब किया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जमान पार्क में इंतहाई मसरूफ दिन गुजारा। इमरान खान ने 25 मई को तहरीक इंसाफ के मुल्क भर से नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली और 28 मई को पंजाब भर के अरकान सूबाई असम्बली का इजलास तलब कर लिया है। तफसीलात जानते हैं इमरान यूनुस की इस रिपोर्ट में। हस्पताल से जमान पार्क मुंतकिल होने के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपनी सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। इमरान खान ने हफ्ते की सुबह 4 बजे जमान पार्क में पार्टी के 9 मुंतखब अरकान असम्बली का इजलास तलब कर लिया है। इमरान खान अरकान असम्बली से सियासी सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। इजलास में KPK में हुकूमत साजी, मरकज और पंजाब में अपोजिशन के हवाले से भी लाएअमल तय किया जाएगा, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ के इंतखाबात में धांधली के हवाले से मुतालबात न माने जाने की सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा और इस सिलसिले में आइंदा का लाएअमल तरतीब दिया जाएगा। इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि सदर आसिफ अली जरदारी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मुलाकात जमहूरियत के लिए खुश आइंद है, जिसके अच्छे असरात मुरतब होंगे। वो आपस में मिले हैं और एक दोस्ती का और भाईचारे का इजहार किया है और आपस में वही बातें जो पहले हुआ करती थी कि रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी, दोस्ती के हाथ, माजी की गलतियों को भुला देना उनने किया है, तो अच्छी बात है। शफकत महमूद का कहना है कि अगर जुडिशल प्रोसेस बेहतर होता तो धरने ना देते। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटों की तस्दीक के लिए फी अंगूठा 10 रुपए फीस ज्यादती है। ये सुनाया गया है कि जी 10 रुपए फी अंगूठा
جو ہے وہ فیس ہوگی، یعنی کہ ایک جو مڈل کلاس کا کینڈیڈیٹ ہے اگر 2 لاکھ ووٹر ہیں تو وہ 20 لاکھ جمع کرائے صرف بایو میٹرک چیکنگ کرنے کے لیے، تو یہ بھی بڑی زیادتی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے تحریک انصاف کے مرکزی رہنما میاں اظہر کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے تحریک انصاف کے مطالبات کو تسلیم نہیں کر رہا۔ دھاندلی پر بننے والی حکومت زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ حکومت زیادہ دیر نہیں چل سکتی، بہت جلد اس کو اترنا ہوگا۔ عمران خان نے اراکین قومی اسمبلی کے اجلاس کے بعد تحریک انصاف پنجاب کے اراکین صوبائی اسمبلی کا اجلاس بھی 28 مئی کو لاہور میں طلب کر لیا ہے۔ کیمرامین علی نعمان کے ہمراہ عمران یونس، سٹی 42۔ خسرے نے ایک اور ننھی جان نکل لی۔ چلڈرن ہسپتال میں مرض کا شکار 7 ماہ کا عبدالرحمان دم توڑ گیا۔ شہر میں خسرے کے باعث اب تک ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 60 ہو گئی ہے۔ شہر میں خسرے کا خطرہ بدستور موجود ہے۔ چلڈرن ہسپتال میں خسرے میں مبتلا 7 ماہ کا عبدالرحمان موت کی آغوش میں چلا گیا۔ موذی مرض کی وجہ سے اب تک شہر میں ہلاکتوں کی تعداد 60 ہو گئی ہے، جبکہ مختلف ہسپتالوں میں خسرے کے 88 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ مرض کی روک تھام کے لیے اقدامات کے باوجود خسرے کی وبا حکومت کے لیے چیلنج بنی ہوئی ہے۔ سرکاری ہسپتالوں میں 1 برس 3 ماہ بعد بھی مفت PCR ٹیسٹ کی سہولت بحال نہ ہو سکی۔ شدید پریشانی سے 2-4 ہیپاٹائٹس کے مریض PCR ٹیسٹ کے لیے پرائیویٹ لیبارٹریز سے رجوع کرنے پر مجبور ہیں۔ سرکاری ہسپتالوں میں ٹیسٹ کٹس ختم ہونے کے باعث ہیپاٹائٹس کے مریضوں کے لیے PCR ٹیسٹ کی سہولت مارچ 2012 کے اوائل میں ختم ہو گئی تھی، جس کے بعد محکمہ صحت کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا تھا، لیکن 1 برس 3 ماہ گزرنے کے باوجود سرکاری ہسپتالوں میں PCR ٹیسٹ کی سہولت بحال نہیں ہو سکی، جس کے باعث مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے اور ہیپاٹائٹس کے مریض PCR ٹیسٹ کے لیے پرائیویٹ لیبارٹریز سے رجوع کرنے پر مجبور ہیں۔ رواں مالی سال کے دوران PCR ٹیسٹ کٹ خریدنے کے لیے حکومت نے بجٹ میں 11 کروڑ روپے کی رقم مختص کی تھی، تاہم 11 ماہ گزرنے کے باوجود محکمہ صحت PCR کٹ خرید کر ہسپتالوں کو مہیا نہیں کر سکا۔ جناح ہسپتال کی MRI مشین ایک مرتبہ پھر خراب ہو گئی۔ MRI ٹیسٹ بند ہونے کے باعث مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جناح ہسپتال میں 2009 میں نصب ہونے والی جدید ترین MRI مشین خراب ہو گئی ہے۔ MRI ٹیسٹ کے لیے مریض دیگر ہسپتالوں سے رجوع کرنے پر مجبور ہیں۔ ذرائع کے مطابق بجلی کی حالیہ دنوں میں ہونے والی بار بار ٹرپنگ کی وجہ سے MRI مشین کو نقصان پہنچا۔ جناح ہسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ MRI کو ٹھیک کرنے کے لیے متعلقہ کمپنی خراب ہونے والا پرزہ بیرون ملک سے درآمد کر رہی ہے اور 4 روز تک MRI کو دوبارہ آپریشنل کر دیا جائے گا۔ سویڈش ایمبیسڈر لارس یالمر نے لاہور آرٹ گیلری میں جاری نمائش ہیئر اینڈ ناؤ کا جائزہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ لاہور اپنی ثقافت کے حوالے سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ لارنس روڈ پر واقع لاہور آرٹ گیلری میں ہونے والی نمائش ہیئر اینڈ ناؤ میں انٹرنیشنل شہرت یافتہ پاکستانی مصوروں عدیلہ سلیمان، محمد علی تالپور، حسنات محمود، نوشین سعید اور محمد ذیشان کے تخلیق کردہ فن پارے آویزاں کیے گئے۔ 5 مصوروں نے اپنے کام مختلف میڈیمز میں تخلیق کیے ہیں۔ اس موقع پر سویڈش ایمبیسڈر نے کہا ہے کہ لاہور اپنی ثقافت اور آرٹ کے حوالے سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام آرٹسٹ کا کام نہایت عمدہ اور قابل دید ہے، جو جدید آرٹ کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائن کے مختلف شعبہ جات کے طلباء کے تھیسس پروجیکٹ کی نمائش کی گئی، جس میں فرانس کے سفیر فلپ تھیبو نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ PIFD کے گریجویٹس کے تھیسس پروجیکٹ کی 7 روزہ نمائش کا آغاز انسٹیٹیوٹ کیمپس میں ہو گیا ہے۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائن کے 49 طلباء و طالبات کے تیار کردہ ملبوسات نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ فرانس کے سفیر فلپ تھیوبو نے طالبات کے ڈیزائن کردہ دیدہ زیب ملبوسات کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ طلباء کا بہترین کام ان کے روشن مستقبل کی دلیل ہے۔ PIFD کے طالبات کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے تھیسس پروجیکٹ میں مختلف ممالک میں مروجہ فیشن کے جدید اور قدیم رجحانات کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ بجلی کی بڑھتی ہوئی لوڈ شیئرنگ سے جنریٹر اور UPS نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ گرمی کے ستائے شہریوں نے ریلیف کے لیے پھر سے ہاتھ کے پنکھوں کا سہارا لینا شروع کر دیا ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں تزین ملک کی یہ رپورٹ۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ دن کو سکون ہے نہ رات کو چین۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے باعث متبادل کے طور پر UPS اور جنریٹرز کا استعمال کیا جا رہا تھا، لیکن 16 گھنٹے سے زائد کی لوڈ شیڈنگ سے UPS بھی جواب دے گئے ہیں۔ بے بس شہری اب گرمی کا مقابلہ کرنے کے لیے پھر سے ہاتھ کے بنے پنکھوں کی مدد حاصل کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، جس کے باعث ان پنکھوں کی خریداری میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے۔
जल जल के ना हाथों में निशान पड़ गए हैं। सारी रात लाइट नहीं, सारा दिन लाइट नहीं है। यूपीएस है वो बेकार है, जनरेटर बेकार है। रात दिन हमारे पंखी के साथ पकड़ पकड़ के हमारे बाजू दर्द होने लग पड़ा। और अब हम इधर ज्वेलर के पास भी आए हैं तो इतना बुरा हाल है कि वो भी बेचारे ऐसे बैठे गर्मी से। रात को ये पंखे बस हाथ में पकड़ पकड़ के यही कर रहे हैं इस्तेमाल, और बिल इतने आते हैं जैसे सारी रात और सारा दिन लाइट आती रहती है। लोड शेडिंग से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। कारोबारी सरगर्मियां मांद पड़ चुकी हैं। दुकानदारों का कहना है कि इनका ज्यादातर वक्त काम पर ध्यान देने की बजाय हाथ का पंखा झलने में गुजर जाता है। पहले 4 घंटे जाती थी, अब 8 घंटे जा रही है, 8 से भी ज़्यादा जा रही है। जनरेटर है, यूपीएस है, वो चार्जिंग करेंगे तो चलेगा, जब वो लाइट ही नहीं आती तो चार्ज नहीं होते, वो कैसे काम करेंगे। हुकूमत से गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज़ ये लोड शेडिंग का कुछ करें। हम टूटी सड़कों से चले जाएंगे, टूटे पुल के ऊपर से चले जाएंगे, लेकिन हमें इस इबरतनाक बिजली लोड शेडिंग से हमें बचाएं। शहरियों का कहना है कि हालिया बदतरीन लोड शेडिंग के बायस शहरी इन पुराने तरीकों की जानिब लौटने पर मजबूर हैं। ये पंखे झल झल कर इनके हाथों पर छाले पड़ गए हैं। इन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि आने वाली हुकूमत लोड शेडिंग का मसला जरूर हल करेगी। अवाम का कहना है कि यूपीएस और जनरेटर बिजली का नेमुल बदल नहीं हो सकते। लोड शेडिंग से परेशान अवाम हाथ के पंखों पर इस्तेफा करने में मजबूर है। कैमरामैन अदनान अली के साथ तज़ीन मलिक, सिटी 42। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। एयरपोर्ट के मुसाफिर लाउंज में सियासी तशहीर पर पाबंदी के बावजूद फ्लेक्सेस नस्ब कर दी गईं, जिस पर मुसाफिरों ने तशवीश का इजहार करते हुए सिविल एविएशन हुकाम से इन्हें फुलफोर उतारने का मुतालबा किया है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सियासी तशहीर पर मुकम्मल पाबंदी आयद है, जबकि पीआईए और सिविल एविएशन में यूनियंस के नुमाइंदों ने एयरपोर्ट लाउंज में सियासी बैनर्स आवेजा कर रखे हैं। मुसाफिरों ने लाहौर एयरपोर्ट पर सियासी बैनर्स आवेजा किए जाने पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि एयरपोर्ट पर गैर मुल्की लोग भी आते हैं, जिसका उन पर बुरा असर पड़ता है। इस हवाले से सिविल एविएशन हुकाम का कहना था कि बैनर्स नस्ब किए जाने से मुतल्लिका अफराद को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। सीटीओ सुहेल चौधरी का कहना है कि मेट्रो बस के मुतवक्को ट्रैक 2 और 3 के लिए मुतबादिल ट्रैफिक प्लान मुरतब कर लिया गया है। तामीराती काम के दौरान ट्रैफिक बहाल रखने के लिए 800 से ज़ायद वार्डन्स 2 शिफ्टों में काम करेंगे। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर सुहेल चौधरी ने मुतल्लिका एसपीज और डीएसपीज के हमरा मेट्रो बस के मुतवक्को तामीर होने वाले नए रूट्स का जायजा लिया। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 800 से ज़ायद ट्रैफिक वार्डन्स मेट्रो के नए रूट्स की तामीर के दौरान ड्यूटी पर मौजूद होंगे। वार्डन्स की कमी पूरी करने के लिए दफातर में तैनात वार्डन्स को फील्ड में लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुतबादिल रास्तों और डायवर्जन पॉइंट्स के लिए मुतल्लिका हुकूमतों के साथ काम जारी है, जिन्हें मुकम्मल होने पर मीडिया के जरिए तशहीर किया जाएगा। दारुल निस्वा हाई स्कूल गौसुल आजम रोड की तालिबात ने हेड मिस्ट्रेस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। तालिबात ने गौसुल आजम रोड को ब्लॉक कर दिया। गौसुल आजम रोड पर दारुल निस्वा हाई स्कूल की तालिबात ने हेड मिस्ट्रेस रोबीना महराज के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए इल्जाम लगाया है कि कमरों में लगाए गए नए पंखे उतार कर पुराने पंखे लगा दिए हैं, जो चलते ही नहीं। पीने के लिए साफ पानी मुयसर न होने के बायस वो पेट की बीमारियों में मुब्तला हो रही हैं। मीना बाजार की मद में फंड्स लेकर खुर्द-बुर्द कर लिया गया। लड़कियों को कैंटीन चलाने का कहा जाता है। तालिबात ने मजीद इल्जाम लगाया कि हेड मिस्ट्रेस रोबीना महराज मुअल्लिमात के खिलाफ दरख्वास्त लिखकर उनसे ज़बरदस्ती दस्तखत कराती हैं। दस्तखत न करने वाली तालिबात को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। एहतजाज के दौरान तालिबात ने गौसुल आजम रोड ब्लॉक कर दी, जिससे गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। तालिबात का कहना था कि जब तक हेड मिस्ट्रेस रोबीना महराज को तब्दील नहीं किया जाता, वो एहतजाज जारी रखेंगी। दूसरी जानिब दारुल निस्वा हाई स्कूल की हेड मिस्ट्रेस रोबीना महराज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बाज़ मुअल्लिमात स्कूल का माहौल ख़राब करना चाहती हैं। उनके खिलाफ डीसीओ रिजवान महबूब को दरख्वास्त दी थी। हेड मिस्ट्रेस ने मजीद कहा कि एहतजाज करने वाली तालिबात को उन्हें मुअल्लिमात ने उकसाया है। एहतजाज करने वाली तालिबात का कहना है कि स्कूल में बुनियादी सहूलतें और साजगार तालीमी माहौल फराहम किया जाए। थाना इशरा पुलिस और लेस्को अफसरान आमने सामने। लेस्को ने 3 मरतबा थाने का कनेक्शन मुनक़ता किया, ताहम पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर कनेक्शन बहाल करते हुए चौथी मरतबा कनेक्शन काटने की कोशिश नाकाम बना दी। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को मोहम्मद सलीम की हिदायत पर निजी और सरकारी महकमों से रिकवरी मुहिम का आगाज किया गया है, जिसके तहत एसडीओ इशरा सब डिवीजन अब्दुल तवाब ने अमले के हमरा बिजली काटने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उसे नाकाम बना दिया। एसडीओ के मुताबिक थाने के जिम्मे 25,75,000 रुपए का बिल वाजिबुल अदा है, जिसकी वजह से 3 मरतबा कनेक्शन मुनक़ता किया गया। ताहम पुलिस ने गैर कानूनी इकदाम उठाते हुए उसे खुदसाख्ता तौर पर बहाल कर दिया।
बेस्को हुक्म के मुताबिक बिलों की अदम अदायगी पर 24 मई के बाद कनेक्शन काट दिया जाएगा। रेलवे मुलाजमीन ने गैर कानूनी भर्तियों के खिलाफ रेलवे हेडक्वार्टर और डीएस रेलवे के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया और टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। गैर कानूनी भर्तियों के खिलाफ होने वाले एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत रेलवे प्रेम यूनियन के सीनियर नायब सदर शेख अनवर ने की, जबकि इस मौके पर मुजाहिरीन ने टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए शेख अनवर ने इल्ज़ाम लगाया कि डीएस रेलवे मुल्तान मोहम्मद अली राज पर अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए महकमे में गैर कानूनी भर्तियां कर रहे हैं, जबकि जीएम रेलवे जुनैद कुरैशी की जानिब से मोहम्मद अली राजपर को भर्तियां रोकने के अहकामात भी जारी किए गए हैं, मगर डीएस ने जीएम के अहकामात के बावजूद गैर कानूनी भर्तियों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। शेख अनवर ने कहा कि मुल्तान हाई कोर्ट ने गैर कानूनी भर्तियों पर चेयरमैन रेलवे और डीएस रेलवे मुल्तान को तलब कर लिया है, जो एक खुशाइन बात है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि डीएस रेलवे मुल्तान को फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए। आवानी होटल लाहौर में तहरीक वहदत इस्लामी के ज़रिए एहतमाम जश्न मौलूद काबा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमाए किराम के अलावा सियासी और समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। जश्न मौलूद काबा कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन, अल्लामा पीर शफात रसूल कादरी, अल्लामा जावेद अकबर साकी, तैयब हुसैन, पीर सैयद मुजम्मिल हुसैन, सईद अहमद, मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन, सरदार मोहम्मद खान लगारी, पीर सैयद उस्मान शाह नूरी, अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी, सैयद बाकिर अली, पीर ज़ियाउल मुस्तफ़ा और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी अख्तर रसूल समेत दीगर अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अल्लामा जावेद अकबर साकी ने कहा कि मौलाए कायनात हज़रत अली का तर्ज ज़िंदगी और हयात मुबारका तमाम इंसानों के लिए मशअल राह है, जिस पर चलकर दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सकती है। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ चौधरी ने रीजनल एडहॉक सुदूर से एतमाद का वोट लेने का प्रोग्राम बना लिया। जनरल काउंसिल का इजलास हेड ऑफिस लाहौर की बजाय कराची तलब कर लिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़राए ने इंकशाफ किया है कि ज़का अशरफ चौधरी ने एतमाद का वोट लेने के लिए पहले 11 में से 7 रीजनल एसोसिएशंस पर एडहॉक लगवाई और अब इजलास पीसीबी के हेड ऑफिस लाहौर और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से दूर कराची में बुलाया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि इजलास का एजेंडा खुफिया रखा जा रहा है, जो इजलास से सिर्फ 15 मिनट पहले जारी किया जाएगा। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। लाहौर में मई के दौरान गर्मी का 59 साला रिकॉर्ड टूट गया। न्यूज़ नाइट में चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद रियाज और अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने मुश्तरका तौर पर सिफारिश कर दी है कि शहरियों को क़यामत खेज़ गर्मी से बचाने के लिए सरकारी और निजी दफातर के औकात सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर दिया जाए। सिटी 42 के प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद रियाज ने बताया कि आज से 59 बरस पहले 1954 में लाहौर का दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा था और 23 मई को ये 47.4 हो गया। उन्होंने कहा कि 25 और 26 मई को दर्जा हरारत में मामूली कमी होगी, मगर जून के दूसरे हफ्ते में एक मरतबा फिर शहर में दर्जा हरारत बढ़ सकता है। उन्होंने मेज़बान नजम वाली खान के सवाल के जवाब में कहा कि मई 1944 में बनने वाला 48 डिग्री सेंटीग्रेड का रिकॉर्ड टूटने का इम्कान भी मौजूद है। उन्होंने बताया कि बरसात का आगाज जुलाई में होगा और इस बरसात में एक दिन में 10 इंच बारिश हो सकती है। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि माएँ बच्चों को गली मोहल्ले से मिलने वाले गोले और शरबत पीने से रोके, घरों में फ्रिज में रखा हुआ बासी खाना खाने से परहेज किया जाए, क्योंकि लोड शेडिंग की वजह से खाना खराब हो सकता है। सख्त लू में चेहरे को तर और सर को ढांप कर रखें। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि खतरे की वबा अभी मौजूद है, जबकि इस शदीद गर्मी में टाइफाइड, डायरिया, काली खांसी, सनस्ट्रोक और गर्दन तोड़ बुखार भी हो सकता है। उन्होंने बताया कि एक रिसर्च के मुताबिक शहर में 95% खवातीन में विटामिन डी की कमी पाई गई है, जिसकी वजह से उनमें बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कम हो सकती है। उन्होंने कहा कि शदीद गर्मी में बाहर निकलने से परहेज किया जाए। इसलिए एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अब्दुल रब का कहना है कि डिफेंस में कत्ल होने वाले वकील ज़ैन गफ्फार को उसके मुखालिफिन हमजा भट्ट और उसके साथियों ने कत्ल किया है, जो इससे काबिल ज़मीन के तनाज़े पर ज़ैन गफ्फार के चचा को भी मॉडल टाउन गुजरावाला में कत्ल कर चुके हैं। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए एएसपी डिफेंस और डीएसपी सीआईए कैंट की सरबराही में 2 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। हमजा भट्ट के बारे में मालूम हुआ है कि वो चंद रोज़ कबल ही बैरून मुल्क से वापस पहुंचा था। इसका रिकॉर्ड भी इकट्ठा किया जा रहा है। तो इनके जो चचा है अहमद गफ़ार, डॉक्टर अहमद गफ़ार, उनको इसी हमजा भट्ट वगैरह ने पहले ज़मीन के तनाज़े पे थाना मॉडल टाउन गुजरावाला में मर्डर कर दिया था। तो ये उसी पर्चे के मुद्दई थे।
تو اب بھی جو انہوں نے یہی وجہ تنازع لکھائی ہے اور انہی لوگوں کے اوپر انہوں نے جو نامزد FIR درج 5 افراد اور 1 نامعلوم کے خلاف درج کرائی ہے. تو انشاءاللہ ہماری ٹیمیں ہم نے بنا دی ہیں. ASP ڈیفنس کی سربراہی میں DSP ہم آرگنائزڈ کرائم CIA ان کے کینٹ ان کو بھی لگا دیا اور ساتھ ہم نے اپنے اور جو اہم ایفیشینٹ افسر ان کو بھی لگا دیے. تو بڑی جلدی انشاءاللہ اس میں پیش رفت ہوگی اور ملزمان گرفتار ہوں گے. پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کے ملازمین نے LDA پلازا میں لگنے والی آگ کے بعد متبادل دفاتر فراہم نہ کیے جانے پر 14ویں روز بھی خیمہ کیمپ میں کام جاری رکھا. پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کے گریڈ 1 سے 17 تک کے ملازمین نے LDA پلازا میں لگنے والی آگ کے بعد متبادل دفاتر فراہم نہ کرنے پر ڈیوس روڈ پر خیمہ لگا کر کام شروع کر دیا. ملازمین 14 دن سے خیمے میں اپنے دفتری امور نمٹا رہے ہیں. پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کے یونین کے صدر سعید عثمانی کا کہنا ہے کہ ملازمین کے وفد نے سیکرٹری انڈسٹریز ڈاکٹر شجاعت علی سے ملاقات کی ہے، جس میں سیکرٹری نے یقین دہانی کروائی ہے کہ 2 روز کے اندر ملازمین کو متبادل دفاتر فراہم کر دیے جائیں گے. رکن صوبائی اسمبلی ماجد ظہور نے سنہری مارکیٹ انارکلی کا دورہ کیا اور تاجروں سے ملاقات کی. ماجد ظہور کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے دن رات کام کرے گی. سنہری مارکیٹ کے دورے کے موقع پر MPA ماجد ظہور نے ناصر خان، میاں شفقت، فیصل محمود، راشد بھٹی، جگنو بھٹی اور خالد محمود سمیت دیگر تاجروں سے ملاقات کی. اس موقع پر تاجروں نے نومنتخب رکن صوبائی اسمبلی کو پھولوں کے ہار پہنائے اور مٹھائی تقسیم کی. سنہری مارکیٹ کے تاجروں نے رکن صوبائی اسمبلی ماجد ظہور کو مسائل سے آگاہ کیا. سنہری مارکیٹ کے تاجروں سے گفتگو کرتے ہوئے ماجد ظہور کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون تاجروں کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہے اور وہ ملک کو انرجی بحران سے نکالنے کے لیے مربوط حکمت عملی کے ساتھ میدان میں اترے گی. ماجد ظہور نے کہا کہ وہ ہمیشہ تاجر برادری اور حلقے کے عوام سے رابطے میں رہیں گے. وفاقی حکومت نے SP سٹی ڈویژن لاہور عدیل حسین چانڈیو کا پنجاب سے FIA تبادلہ کر دیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق FIA نے وفاق سے SP عدیل حسین چانڈیو کی خدمات مانگی تھی، جس پر ان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے. عدیل حسین چانڈیو اس وقت SP سٹی ڈویژن لاہور تعینات ہیں. ان کا تعلق پولیس سروس کے 35ویں کامن سے ہے اور وہ ان دنوں چھٹی پر ہیں. سمز آڈیٹوریم میں کالجز یونیورسٹیز کوئز مقابلوں کا انعقاد ہوا. مختلف شہروں سے آئے طلباء و طالبات کی 36 ٹیموں نے حصہ لیا. ڈاکٹر غزالہ تبسم کی نگرانی میں یونیورسٹی آف ٹیکساس، فاطمہ میموریل کالج، UET پنجاب یونیورسٹی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد، کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی، فاطمہ جناح میڈیکل کالج، CMH میڈیکل کالج، راولپنڈی میڈیکل کالج اور دیگر یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات میں کوئز مقابلے ہوئے. مختلف شہروں سے آئی ہوئی 36 ٹیموں میں سے 12 ٹیمیں سیمی فائنل کے لیے منتخب ہوئیں، جن میں فائنل میں جانے کے لیے سخت مقابلہ ہوا. کوئز مقابلوں میں ججز کے فرائض صفوان محمود، اویس اجمل، گوہر محمود عظیم، عائشہ ریاض اور آمنہ شوکت نے انجام دیے. سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. دیکھتے رہیے سٹی 42. شہر کی عدالتی کارروائیوں پر ایک نظر ڈالیں گے سٹی عدالت میں. پنجاب بار کونسل اور لاہور ہائی کورٹ بار نے زین غفار ایڈوکیٹ کے قتل کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے قاتلوں کی جلد گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے. تاہم ہڑتال کی کال کے باوجود لاہور ہائی کورٹ میں معمول کے مطابق عدالتی امور جاری رہے. پنجاب بار کونسل اور لاہور ہائی کورٹ بار نے ڈیفنس کے علاقے میں زین غفار ایڈوکیٹ کے قتل کے واقعے کی بھرپور مذمت کی. لاہور ڈویژن میں وکلاء نے عدالتی بائیکاٹ کیا. چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب بار چودھری طاہر نصر اللہ وڑائچ اور ہائی کورٹ بار کے عہدیداران عابد ساکی، غلام سرور نہنگ، سیکرٹری M بلیغ السما اور سیکرٹری فائنانس عثمان شیر گوندر، لاہور ہائی کورٹ بار کے سابق نائب صدر حفیظ الرحمان چودھری، محمد رفیق شٹول اور محمد اکرم چودھری نے زین غفار ایڈوکیٹ کے قاتلوں کی جلد گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے. ہڑتال کی کال کے باوجود ہائی کورٹ میں معمول کے مطابق عدالتی امور جاری رہے. وکلاء رہنماؤں کا کہنا ہے کہ زین غفار کا قتل شہر میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا منہ بولتا ثبوت ہے. صارف عدالت نے ایڈوانس رقم دینے کے باوجود دروازوں کے شیشے وعدے کے مطابق نہ لگانے پر یوسف گلاس ہاؤس اشرا کے مالک کو 23,000 روپے درخواست گزار کو فوری ادا کرنے کا حکم دیا ہے. صارف عدالت میں دیو سماج روڈ کے رہائشی صابر کبیر نے یوسف گلاس ہاؤس اشرا کے خلاف 5 لاکھ روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ اس نے گھر میں شادی کی تقریب سے پہلے دروازوں پر شیشے لگوانے کے لیے یوسف گلاس ہاؤس اشرا کے مالک کو ایڈوانس رقم 8,000 روپے ادا کیے، جس نے وعدہ کیا کہ شادی کی تقریب سے پہلے تمام گھر میں شیشے لگا دیے جائیں گے. لیکن دکاندار نے وعدہ خلافی کی، جس سے اس کو سخت ذہنی کوفت کا سامنا کرنا پڑا.
अदालत से इस्तदा है कि उसे हर्जाना दिलवाया जाए। अदालत ने फ्रीकैन के दलाल सुनने के बाद यूसुफ ग्लास हाउस के मालिक को 30,000 रुपये दरख्वास्त गुजार को फौरी अदा करने का हुक्म दे दिया। एडिशनल सेशन जज अब्दुल क़य्यूम खान ने अदालती अहकामात की तामील न करने पर मुख्तलिफ थानों के 15 ASI और 50 कांस्टेबल्स के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने CCPO को अहलकारों को पेश करने का हुक्म दे दिया है। एडिशनल सेशन जज अब्दुल क़य्यूम खान की अदालत में कत्ल के मुकदमात ज़ेर समाअत हैं, जिनमें अदालत की जानिब से पुलिस अहलकारों को बतौर गवाह पेश होने और मुकदमात का रिकॉर्ड पेश करने के अहकामात जारी किए गए। अहकामात पर अमल दरामद न होने की वजह से मुकदमात इल्तवा में पड़े हैं। अदालत ने दौरान समाअत पुलिस अहलकारों के पेश न होने पर थाना ग्रीन टाउन, शादरा, काहना, सिटी रायमंड और इस्लामपुरा के 15 ASI और 50 कांस्टेबल्स के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने अपने हुक्म में लिखा है कि कानून नाफिज करने वाले अहलकार जब खुद अदालती अहकामात पर अमल नहीं करेंगे तो आम आदमी कैसे करेगा। अदालत ने CCPO को हुक्म दिया है कि अहलकारों को अदालत में पेश करने का पाबंद करें ताकि इल्तवा में पड़े मुकदमात निपटाए जा सकें। शहर में जराइम की क्या सूरत हाल रही आप जान सकेंगे सिटी क्राइम में। हरबंसपुरा के इलाके में गैस लीकेज के बायस घर में आतिशज़दगी से 36 साला खातून जलकर जाँ बहक हो गई, जबकि उसका खाविद और बेटी को शदीद जख्मी हालत में मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मस्कीनपुरा के रिहायशी 40 साला शहबाज के घर में गैस लीकेज से आग भड़क उठी। बावर्ची खाने से शुरू होने वाली आग ने जल्द ही पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। आग की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू की टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। घर में मौजूद शहबाज, उसकी बेगम रुबीना और 17 साला बेटी हिना आग की जद में आकर झुलस गए। इमदादी टीमों ने तीनों को तिब्बी इमदाद के लिए मेयो अस्पताल पहुंचाया, जहां रुबीना जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि आग की शिद्दत ज्यादा होने के बायस घर में मौजूद अफराद बाहर नहीं निकल सके। मिस्ट्री शाह पुलिस ने गन पॉइंट पर शहरियों से मोटरसाइकिलें छीनने वाले गैंग के 12 साला बच्चे समेत 3 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 9 मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक रेलवे क्वार्टर का रिहायशी इरफान अपने दीगर साथियों गुलाम हैदर और 12 साला बच्चे मोहम्मद अली से मिलकर वारदातें करता था, जिनके खिलाफ शहर के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस ने मुल्जिमान की मौजूदगी की निशानदही पर कार्रवाई करते हुए छापा मारा और चारों मुल्जिमान को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जे से छीनी गई 9 मोटरसाइकिलें, असलहा और दीगर अशिया बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया है। नसीराबाद मॉडल कॉलोनी में छत से गिरकर 3 साला अब्दुल्ला जाँ बहक, जबकि 4 साला क़य्यूम शदीद जख्मी हो गया, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हाफिज अल्ताफ नसीराबाद मॉडल कॉलोनी में किराए के घर की दूसरी मंजिल में रिहाइश पजीर है। उसके 2 कमसिन बेटे अब्दुल्ला और क़य्यूम खेलते हुए अचानक सीढ़ियों से नीचे गिर गए, जिसके बायस 3 साला अब्दुल्ला मौके पर ही जाँ बहक हो गया और उसका 4 साला भाई क़य्यूम शदीद जख्मी हो गया, जिसको तिब्बी इमदाद के लिए चिल्ड्रन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बच्चे की लाश देखकर घर में सफ़े मातम बिछ गई, जबकि बच्चों की मां शिद्दत गम से निढाल हो गई। बागवानपुरा के इलाके में सिक्योरिटी गार्ड की गैर इरादी फायर से रिक्शा ड्राइवर समेत 2 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया। शरीफ मार्केट के सदर गुलाम मुस्तफ़ा के मुताबिक मार्केट में ड्यूटी पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड नवाज से गैर इरादी तौर पर बंदूक चल गई, जिसकी जद में आकर एक राहगीर मोहम्मद इसहाक और रिक्शा ड्राइवर जावेद जख्मी हो गए। गोली दोनों अफराद की टांगों पर लगी, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए मेयो अस्पताल पहुंचा दिया गया। गुलाम मुस्तफ़ा के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। शहर की तालीमी सरगर्मियों पर एक नजर डालेंगे सिटी तालीम में। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन मोहम्मद असलम कंबो का कहना है कि 1 जून से 14 अगस्त तक तमाम तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की छुट्टियों के दौरान समर कैंप की इजाजत होगी। उन्होंने कहा कि समर कैंप में बच्चों से इजाफी फीस वसूल नहीं की जाएगी। समर वेकेशन इंशाल्लाह 1 जून से 14 अगस्त तक होंगे, और जो पहले जिन शराइत के साथ हम समर कैंप की इजाज़त देते हैं, उन शराइत के साथ समर कैंप की इजाज़त भी होगी, लेकिन उनके जो औकात हैं वो मुकर्रर शुदा औकात होंगे, और गर्मी की छुट्टियों में कोई इजाफी फ़ीस वसूल नहीं की जाएगी। समर कैंप के लिए ज़रूरी होगा कि वो सुबह के औकात में हों और वहाँ पे गर्मी से मुतल्लिका और ठंडे पानी का मुनासिब इंतज़ाम हो, सिक्योरिटी का मुनासिब इंतज़ाम हो, और उसके लिए कोई नामुनासिब वसूली वालिदैन से ना की जाए,
ताहम अगर उन्हें अजाफी पीरियड टीचर्स को देने हैं तो उसके लिए एक मुनासिब हद तक उनको इजाज़त होगी। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन मोहम्मद असलम कब्बो ने गर्मियों की छुट्टियों के दौरान सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को हिफाजती टीकों की वैक्सीनेशन के लिए खुला रखने की हिदायत की है। सिटी 42 से गुफ्तगू में सेक्रेटरी स्कूल्स मोहम्मद असलम कब्बो ने कहा कि खसरे की वैक्सीनेशन के लिए तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स खुले रहेंगे और स्कूल का हेडमास्टर और निजी स्कूल का सरबराह उसका जिम्मेदार होगा। उन्होंने बताया कि महकमा स्कूल्स एजुकेशन हिफाजती टीकों के लिए महकमा हेल्थ से मुसलसल राब्ते में है और इस सिलसिले में महकमा हेल्थ की जारी गाइडलाइन पर अमल हो रहा है। यहाँ पर आपको एक अहम खबर से आगाह करेंगे कि लाहौर में बड़े पैमाने पर SHOs के तकर्रो तबादले किए गए हैं। एक मरतबा फिर आपको बताएंगे कि लाहौर में बड़े पैमाने पर SHOs के तकर्रो तबादले किए गए हैं। DIG जवाद डोगर के अहकामात पर ये तकर्रो तबादले किए गए हैं। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद हैं असद साही, उनसे बात करते हैं, उनसे अपडेट्स लेंगे। असद साही, ये बताएगा कि किन SHOs को कहाँ तैनात किया गया है? जी, ये DIG ऑपरेशन जवाद डोगर ने कुछ ही देर पहले 15 थानों के SHO के तकर्रो तबादले किए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंस्पेक्टर कमरबाज को शफीकाबाद से तब्दील करके इकबाल टाउन से नासिर चट्टा को तब्दील करके शाहदरा से अब्दुल्ला जान को तब्दील करके अकबरी गेट, बरकी से इश्तियाक अहमद को तब्दील करके बदामी बाग से हसन अस्करी को तब्दील करके बरकी SHO लगाया गया। नवीद आजम को ग्रीन टाउन से तब्दील करके शफीकाबाद, मुगलपुरा से मुबीन भट्ट को तब्दील करके ग्रीन टाउन SHO लगाया गया है। आतफ मिराज को पुलिस लाइन से थाना हेर का SHO तैनात किया गया है। थाना हेर के SHO असद महमूद को पुलिस लाइन रिपोर्ट करने की हिदायत की है। सब इंस्पेक्टर मुमताज हुसैन को मुस्तफा टाउन, तारक बशीर चीमा को मुगलपुरा, फरूक इफ्तिखार खारा को कोट लखपत और अरशद महमूद को SHO मस्तीगेट तैनात किया गया है, जबकि वकार सैन को कोट लखपत से पुलिस लाइन रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है और मस्ती गेट से निशात अली को भी पुलिस लाइन भिजवा दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया असद साही हमें अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, असद साही हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद थे और SHOs के तकर्रो तबादले के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट के फारिग तहसील तलबा के एहसास में अलविदाई तकरीब का अहतमाम किया गया। तलबा के बनाए हुए खाके और परफॉर्मेंस देखकर हाज़रीन ने खूब दाद दी। GT रोड पर वाक़े UET के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक़िद होने वाली अलविदाई तकरीब में डायरेक्टर IBM डॉक्टर मोहम्मद शुएब, डॉक्टर नवीद रमज़ान, डॉक्टर गुलाम अब्बास, डॉक्टर अशफाक अहमद, समरीन मलिक, फरीहा तारिक और मरियम समेत फैकल्टी मेंबरान ने शिरकत की। तकरीब में सेशन 2012 में दाखिला लेने वाले तलबा को वेलकम, जबकि फारिग तहसील होने वाले 2009 सेशन के तलबा को खूबसूरत अंदाज में अलविदा किया गया। तकरीब में तलबा की जानिब से पाकिस्तानी और भारतीय गानों पर परफॉर्मेंस पेश की, जबकि यूनिवर्सिटी में तलबा और तालिबात ने मज़ाहिया खाका भी पेश किया। तकरीब में शामिल सीनियर्स और जूनियर्स तलबा रंगारंग प्रोग्राम से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। तलबा का कहना है कि उन्होंने UET में अपनी ज़िंदगी का यादगार वक्त गुजारा है और यहाँ से वो अच्छी यादें लेकर जा रहे हैं। City Taaleem was brought to you by Punjab Group of Colleges, the largest higher education network in Pakistan. स्वीडन, जर्मनी और फ्रांस से आए सफीरों ने लाहौर के कल्चर और आर्ट के हवाले से क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। Well, Lahore, is the cultural capital of Pakistan, I must say. You have a rich culture and it's a very historic place, and I recommend everybody to, if they go to Pakistan, they should always go to Lahore also. So it's a city which I like very much, which is also very different, I think, from the other cities of Pakistan. Probably it's different because it has a huge culture, possibly also because it is well administrated. So it's always a pleasure to be here, and it's a city where you can never stop to discover new things. It's a fact that Lahore is very often regarded as a cultural capital of Pakistan, and it's certainly a place where you have very important historical heritage. So you have really in Lahore all the components of a cultural tradition, the heritage, the universities and the creativity. शहर के कारोबारी उतार चढ़ाव पर एक नजर डालेंगे सिटी बिजनेस में। शहर की सराफा मार्केटों में सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान बदस्तूर बरकरार। 300 रुपए फी तोला इजाफे से कीमत 53,400 रुपए तक जा पहुंची। सराफा मार्केटों में सोने की कीमत में बदस्तूर इजाफा देखने में आ रहा है।
मार्केट ज़राए का कहना है कि आइंदा हफ्तों में सोने की कीमतों में मज़ीद इजाफा मुतवक्को है। आज शहर के सराफा मार्केट में फी तोला सोने की कीमत में 300 रुपये इजाफा हुआ, जिससे मुकामी सोना 53,400 रुपये में फरोख्त हुआ। इसी तरह 22 कैरात 10 ग्राम सोने की कीमत 41,957 रुपये, 24 कैरात 10 ग्राम के नर्ख 45,771 रुपये रहे, जबकि 10 ग्राम चांदी की कीमत 762 रुपये रही। और अब एक नज़र गैर मुल्की करेंसी रेट्स पर। सिटी 42 के न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।